Good morning, friends. Today we are going to learn the appreciation. What we are going to learn today? We are going to see the appreciation of this poem. The name of the poem is You Start Dying Slowly. You Start Dying Slowly, written by Pablo Neruda. We had already seen this poem and we had seen that we should always be positive towards our positive approach towards our life if you want to successful, otherwise we start dying slowly. The poet had the poem had clearly tells us that if you lose our hope we can dying स्लोली. तर या कवितामध्ये आपल्याला हे सांगितलं आहे की आपण नेहमी आशावादी राहिलं पाहिजे, हमेशा आशा रखना चाहिए, निराशावादी नहीं रहना चाहिए, और जो जो चीज़ हमें पसंद है वो सब चीज़ हमें जीवन में करना चाहिए ताकि हम एक सुखी जीवन जी सके। तो जिसमें हमें आनंद नहीं मिलता है वो काम हमें करना नहीं चाहिए, ऐसी कवि ने हमें इसमें बताने का पूरा प्रयास किया है। तो आज हम इस पर आधारित जो अप्रिसिएशन है, जो हमको 5 मार्क के लिए आता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंस्पिरेशनल कविता है, इस कविता का आज हम अप्रिसिएशन देखेंगे। Today we are going to see the poetic appreciation of the poem. The poetic appreciation contains 5 marks. ये आपको 5 मार्क के लिए आता है और काफ़ी इजी होता है। इफ़ यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली यू कैन इजीली स्कोर आउट ऑफ मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. सो वी कैन स्टार्ट द पोएटिक अप्रिसिएशन ऑफ यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. So here we can see the question, the distribution of mark, how the mark is distribution here, that we are going to see. There will be 5 questions will be asked in the board exam and you have to write the 5 question answer properly so that you can score the whole mark. First question will be title. You have to simply write the title and it contains, carries half mark, and title will be already given in your question paper, so you don't have to worry about the title, it will be already given in the question paper. Second will be the poet name, that is also carries half mark. Third question will be the rhyme scheme. Rhyme scheme, what we had already learned about the rhyme scheme in the 9th standard, that every poem has a rhyme scheme. Some poem has a फ्री वर्स, म्हणजे मुक्त शैलीत असतात काही काही कविता, ज्याला राईम स्कीम नसतात. ते आपण बघितलेलं आहे, ते आपण याच्यात बघणार आहोत. ते आपल्याला इट कंटेन्स 1 मार्क्स. फोर्थ क्वेश्चन विल बी फिगर ऑफ स्पीच, अँड आय हॅड ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट इट द मोस्ट कॉमनली use figure of speech is alliteration and repetition, and we can see that in each and every poem the examples of alliteration and repetition is given, so you don't have to bother about that. You only have to take out the alliteration figure of speech or repetition figure of speech and you can get 1 mark easily in this type of question. Then the last and the most important question which carries 2 marks, the name of that question is theme or central idea of the poem. This is somewhat the difficult part because you have to write the whole summary of the poem, which you had understand what you get, whatever the conclusion you get from the poem, that you have to write in this answer. Okay, so you have to by heart that, you have to write and by heart that, so that you can easily score the whole mark. So now we are going to see the appreciation. Okay, so the first question is, here we can see the poem name. Okay, you start dying slowly. First question will be the title. It contains, carries half marks. टायटल दिला राहील आणि टायटल तुम्हाला अर्धा मार्कासाठी राहील, आणि टायटल हा आधीपासूनच तुमच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये दिलेला राहील. त्याच्यामुळे तुम्हाला टायटल, यू डोंट हॅव टू रिमेंबर द टायटल, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर. देन यू हॅव टू राईट, हाऊ यू हॅव टू राईट द टायटल ऑफ द पोयम इज यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, असं तुम्हाला लिहायचं आहे. टाइटल ऑफ द पोएम इज़ यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, और ये जो यू स्टार्ट डाइंग स्लोली जो टाइटल है ये आपको पहले से ही आपके क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा, इस वजह से आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. द सेकंड क्वेश्चन, पोएट नेम. व्हाट इज़ द पोएट नेम? द पोएट का जो नाम है, दिस इज आल्सो बी गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, सो हियर आल्सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्वेश्चन पेपर. सॉरी, पोएट नेम. द पोएम is written by Pablo. The poet name is
Pablo Neruda, or the poem is written by Pablo Neruda. This is the poet name and this is already given in your question paper. ये पहले से दिया रहेगा और ये भी आधा मार्क. आप देख सकते हो कितना इजी है ये 1 मार्क हमें लेने के लिए. ये पहले से ही आपके क्वेश्चन पेपर में दिया है, आपको सिंपली वहाँ से उठाना है और लिख लेना है ताकि आपको जो पूरे मार्क है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द राइम स्कीम. सो जो ये पोएम है ये मुक्त शैली की पोएम है, इस वजह से इसमें राइम स्कीम नहीं है. तो ये आपको क्या लिखना है, द पोएम हैज़ नो राइम स्कीम. इस पोएम को कोई राइम स्कीम नहीं है, नो राइम स्कीम. इट इज़ द फ्री वर्स पोएम. ये कौन सी पोएम है, फ्री वर्स पोएम. इसको कितने मार्क है, 1 मार्क है. तो आपको इस प्रकार से लिखना है, द पोएम हैज़ नो राइम स्कीम एंड इट इज़ अ फ्री वर्स पोएम. इतना भी आपने अगर ये भी लिख दिया, इट इज़ अ फ्री वर्स पोएम, फिर भी आपको 1 मार्क आसानी से मिल सकते हैं. सो यू कैन ईजीली बाय हार्ट दैट एंड यू कैन ईजीली राइट दिस क्वेश्चन. ओके. Fourth question will be figure of speech, and I had already told you that alliteration, and this is we are going to see the example of alliteration, but repetition is also a commonly used figure of speech. You can easily identify that figure of speech from the poem. Alliteration, what is mean by alliteration? The sound yes is repeated. The sound of any alphabet is repeated continuously in the line, so you can यूज़ एज ए अलिट्रेशन. मतलब वो रिपीट होता है, जो शब्द है जिससे कोई नया शब्द शुरू होता है वो सेम शब्द से शुरू होता है, तब जाके हम अलिट्रेशन लिखते हैं. म्हणजे सारख्या शब्दापासून सुरू होणाऱ्या एकाच ओळीमध्ये असणाऱ्या शब्दांना आपण अलिट्रेशन म्हणतो. इथे पहा, स्टार्ट अँड स्लोली, कसं यसपासून सुरू झालं ना, म्हणून हे काय झालं, अलिट्रेशन. द साऊंड यस इज रिपीटेड. तुम्हाला हे फक्त लिहायचं आहे, अलिट्रेशन लिहायचं आहे. आणि ही जी ओढ आहे, जी पण ओढ तुम्हाला दिसते ज्याच्यामध्ये त्या शब्दापासून नवीन शब्द सुरू होत आहे, ते शब्द तुम्हाला लिहून घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला इथे यू कॅन इझिली स्कोर 1 मार्क. द साऊंड यस इज रिपीटेड हियर अँड इट इज कॉमनली यूज इन ऑल द पोएम of our syllabus. Okay, it is contained in all the poem of our syllabus. Last question. The last question, theme and central idea of the poem. The theme and central idea of the poem contains 2 marks. It is the important and you have to definitely by heart if you want to get all the 2 marks. The poem advises us some important things to follow. मतलब ये पोएम में हमको क्या किया, एडवाइस किया है टू अस टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू फॉलो. कुछ जीवन में इम्पॉर्टेंट थिंग हमको फॉलो करना है. इफ़ वी डोंट फॉलो देम, अगर हम उनको फॉलो नहीं किए, वी आर लूजिंग होप. अगर हम क्या होंगे, हम हमारी आशा खो देंगे एंड हैप्पीनेस इन लाइफ, और अपने जीवन में खुशियाँ को हम खो देंगे. सो जैसे कवि ने हमको जो मार्ग बताया है, जो मार्गदर्शन किया है, उसे हमको क्या करना है, जीवन में फॉलो करना है, ऐसे इसमें बताया गया. सो वी शुड एन्जॉय लाइफ बाय फुलफिलिंग आवर ड्रीम. सो वी शुड एन्जॉय लाइफ बाय फुलफिलिंग आवर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स. ठीक है. वी शुड ट्रैवल, रीड, लिसन टू द साउंड्स ऑफ लाइफ, अप्रिशिएट आवर सेल्फ. मतलब जो भी कविता में बताया गया है कि हमें पूरी जीवन के में हमारी जो भी सपने हैं, इच्छाएं, इसको एंजॉय करना चाहिए. हमें घूमना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए साउंड्स को, और ख़ुद को अप्रिशिएट करना चाहिए. ये सब चीज़ हमें कविता में बताया है. यू शुड राइट दिस, यू हैव टू बाय हार्ट दिस सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम एंड you will easily get 5 marks. Hope everybody understand the appreciation of poem. What you have to do, you have to write this appreciation in on your notebook and you have to practice it by you have to by heart it and try to write by your own, so you can see that how you can perfectly write and you can get 5 marks. Thank you.